بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی جنگ بڑے عروج پر ہے۔ حکمران یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ، کوئی شخص نہ سڑکوں پہ نکلے، نہ ایوان میں آئے اور نہ کہیں ہمیں نظر آئے، تاکہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جبکہ اس پورے ایپیسوڈ میں جماعت اسلامی کا اپنا نہایت ہی عام کردار رہا ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے دھرنے بھی دیے، ہڑتالیں بھی کی، اور اس وقت بھی مختلف جگہ پر اجتماعات کر کے عوام کو باور کرا رہے ہیں کہ حکومت جو ظلم اور جبر کر رہی ہے اور مہنگائی کی چکی میں جو پیس رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام جو کہ پاکستان کی ایک دینی اور مذہبی جماعت ہے، اور وہ ہر حکومت میں شریک اقتدار رہی ہیں، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس میں وہ اقتدار میں نہیں آئی، اور ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اقتدار میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن تھا۔ لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بار بار وزیر اعظم، صدر اور نواز شریف کے ملنے کے بعد کچھ اس طرف بھی معاملات بہتر ہوئے حکومت کے نظر آ رہے ہیں، کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ترمیم جو کروانی ہے، جب تک ہمارے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوگی ہم کرا نہیں سکتے۔ تو جب تک مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے یہ کرا نہیں سکتے۔ لیکن دوسرا، اب جو رانا ثناء اللہ جو مشیر وزیر اعظم کے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے پاس اور آپشن بھی موجود ہیں، اور محسن نقوی صاحب نے بھی یہ خبر سنا دی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ نہیں بھی رہیں گے تو ہمارے پاس بندے پورے ہیں، ہم نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو بندوبست کیا ہے؟ وہ جو 10 لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور وہ مسنگ پرسن بنے ہوئے ہیں، وہ مل نہیں رہے، یہ وہی 10 لوگ ہیں جن کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اس 2/3 میجارٹی کے لیے ان سے جو ان کی بارگیننگ ہے اس کو آگے چلا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں بھی ہر جگہ ان کے بندے موجود ہیں، اور جب بھی وہ ہڑتال کی کال دیتے ہیں یا مظاہرے کی کال دیتے ہیں تو پورا پاکستان سڑکوں پر امڑ آتا ہے۔ اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا اور حکمرانوں نے اپنی من مانی کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ جماعت اسلامی بھی ان دھرنوں میں، ان جلسوں میں، جلوسوں میں شرکت کرے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم اگر کوئی احتجاج بھی کریں گے تو ہم الگ کریں۔ ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میں نے آج جن عام شخصیات کو دعوت دی ہے ان میں ڈاکٹر فرید پراچا جو کہ جماعت اسلامی کے مقتدر رہنما ہیں اور انہوں نے کئی کتابوں کے مصنف ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرید پراچا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ پریز صاحب، یہ جو آل پارٹیز کانفرنس کرائی فلسطین اور اسرائیل کی جو معاملات اس بارے میں، اس میں جماعت اسلامی نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور وہ شامل بھی ہوئے، اور تمام تر اپنی مصروفیات اور تفضات کے باوجود انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ اس میں میں نے تو دیکھا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس سے کوئی ایسا پیغام جائے جو کہ یہ پیغام ہو کہ اسرائیل ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہم اپنا ایٹم بم لے کے آ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو توقع نہیں تھی کہ یہ کوئی اس حد تک چلے جائیں گے کہ ایٹم بم لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ایٹم بم تو کسی بھی حکومت نے اس فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، اس کو کبھی بھی کوئی اس انداز پہ اس کا تھریٹ نہیں دیا۔ البتہ یہ بات تھی جس کے لیے جماعت اسلامی نے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کوشش کی کہ پاکستان سے ایک آواز اٹھے اور وہ فلسطینیوں کے حق میں ہو، وہ اسرائیل کے خلاف ہو، اس کی
جارحی کے خلاف ہو، دہشت گردی کے خلاف ہو، اور ہم یہاں سے یہ میسج آئے کہ پوری پاکستانی قوم، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سیاسی جماعتیں ہوں یا دینی جماعتیں ہوں، تاجر طبقہ ہو یا عام آدمی ہو، ان کو فلسطین کا مسئلہ وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، یعنی اس میں ایک مشترکہ موقف بھی ہوا۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے زور اسی بات پر دیا کہ بھی کوئی عملی اقدامات طے کریں۔ مذمت تو دنیا میں بڑی ہو رہی ہے، غیر مسلم دنیا بھی کر رہی ہے مذمت، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، یورپ میں بھی ہو رہی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہو رہی ہے، سڑکوں پہ بھی ہو رہی ہے، خود یہودی بھی کر رہے ہیں، یعنی نیتن یاہو کے خلاف یہودیوں کے بڑے بڑے مارچ ہو رہے ہیں۔ تو اصل تو جس چیز کی ضرورت ہے جس سے جنگ بندی ہو چاہیے، اس سلسلے میں پھر یہ تھا کہ جو لوگ بھی اس وقت فلسطین کے حق میں ہیں، جن ممالک ان تک ہم رفتار اپروچ کریں، پاکستان آگے بڑھے۔ پاکستان جو ہے مسلمان ممالک کی سربراہی کانفرنس اور جس میں کمانڈر ان چیف بھی تمام افواج کے موجود ہوں، ان کی میٹنگ بلائی جائے۔ ایک بڑا میسج آتا ہے اس بات سے، چاہے آپ کچھ بھی نہ کریں تب بھی اگر ان کو یہ نظر آئے کہ یہ تو کچھ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہرحال اس سلسلے میں کوئی بڑے اقدامات تو نہیں ہوئے، لیکن یہ جس طرح کے حکمران ہیں اور جس طرح کی ان کی صورتحال ہے، اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی پیش رفت تھی۔ پیر پہ پوری جی ڈاکٹر صاحب جی ہوئے، تو اس لحاظ سے یہ 7 اکتوبر جو پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں منایا گیا، یکجہتی فلسطین کے طور پہ، تو وہ پاکستان میں بھی ٹھیک طریقے سے اچھا اب یہ جو ساری کانفرنس تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی اور نہ ہی ان کو بڑی شاد اور مات سے یہ دعوت دی گئی ہے، اور حالانکہ پاکستان میں جو گزشتہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں 3.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پڑے ہیں، تو کیا اس سے یہ میسج اچھا جاتا ہے کہ ایک عام بڑی پارٹی جو ہوگی اس کو شامل ہی نہیں کیا گیا، یہ شامل نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ انہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ چیزیں تو اس سے اوپر ہوتی ہیں جو سیاست سے بالا تر ہوتی ہیں۔ یہ اپنا بیٹھی ہوئی ہیں ان کی ترجمان بھی، میں ان سے بھی کہوں گا کہ بہرحال پارٹی کے اندر ایک یہ فضا تو پیدا کریں کہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، لیکن کشمیر اور فلسطین اگر آئے گا تو اس پہ آپ کوئی بھی ہو ان کو، اب ہم بھی ان کے خلاف تھے، دھرنے ہم دے رہے تھے، لیکن ان سے بھی جا کے ملے اور کوشش کی کہ یہاں یہ جو ہے یہ دن ہمارا یک ہو۔ تو پی ٹی آئی کو یہ ذمہ داری اپنی سمجھنی چاہیے، سیاست اپنی جگہ رہی، یہ حکمران کسی قابل نہیں ہے، سب ان کے خلاف باتیں ٹھیک ہے جو آپ نے بھی کی ہیں، لیکن یہ مرحلہ جو ہے اس پہ میں نہیں سمجھتا، ہم بھی ایک سیاسی کارکن ہیں کہ پی ٹی آئی نے کوئی بہتر فیصلہ کیا، ان کو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے یہ تفاضات تھے کہ یہ جو فلسطین کے بارے میں کانفرنس بلائی جا رہی ہے نا، پس پش اس کے ساتھ یہ وہ ہے جو 63A والا مسئلہ ہے، اور اس میں وہ ساری جماعتوں کو بات چیت کرنے کے بعد، کھانے پینے کے بعد یہی معاملہ ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ کیونکہ پہلے مولانا فضل الرحمان نے ملنا چاہ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب سے، ایک دن پہلے روٹ بھی لگ گیا، وہاں پہ پولیس بھی پہنچ گئی اور جانے آنے کا انتظام ہو گیا، لیکن یکدم مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا میں نے ملاقات نہیں کرنی۔ اب وہ ملاقات بھی ہو گئی، 6 لوگ جو بیٹھے ہیں، اب میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں یہ جو تحریک انصاف کے جو تفاضات تھے وہ درست ہے؟ کیونکہ بعد میں مسئلہ تو یہی اٹھانا، پیچھے تو یہ پسے پڑتا تو یہی تھا۔ یہ دیکھنا، بعد میں کوئی بھی کسی چیز پہ مل کے بیٹھ جائے تو اس سے وہ کانفرنس تو ختم نہیں ہوتی، ہم تو نہیں بیٹھے ان کے ساتھ اور بھی کئی نہیں بیٹھے، تو مطلب یہ تھا نا کہ وہ ایک الگ میٹنگ تھی، اس میں پی ٹی آئی نہ جاتی، لیکن فلسطین والی چیز پہ پہلے پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے تھا۔ پارٹیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں جی، کوئی حرج نہیں ہوتا کہ کبھی یہ تسلیم کر لیا جائے
کہ ہاں یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی. اس کو اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے تھا. کوئی اچھا میسج نہیں تھا. اچھا زیب ناز صاحب آپ یہ بتائیں، اب یہ جو آپ یعنی دھرنے پہ دھرنا، کال پہ کال، ہڑتال، احتجاج، یہ کب تک آپ کرتے رہیں گے؟ کیونکہ کسی جگہ بھی آپ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثنا صاحب، آپ نے بہت اچھے موضوع پہ مجھے مدعو کیا. میں آپ کی ٹی وی اور آپ کے چینل کے توسط سے سب لوگوں کو ایک بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کسی بھی کام سے دور نہیں بھاگتی، نہ اس کو بھاگنا آتا ہے. بھاگنا ہوتا تو بہت دیر پہلے بھاگ چکے ہوتے. ہمارے قائد عمران خان صاحب کو جس طریقے سے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہماری پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہمارے کارکن، لیڈر، ہمارے وہ ساتھی جو سٹرگل میں تھے، سب کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. ان کے اوپر 10-10، 20-20، 50-50 FIR کاٹی گئی ہیں. ٹھیک. اور ان کو اس طرح چادر اور چار دیواری کو چاک کیا گیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح عزتوں کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سارا کیا کیا، کس کا کیا دھرا ہے؟ یہ بیگم صاحبہ، ٹک ٹاکر صاحبہ آج نئی نسل کو سمجھتی ہے کہ میں نئی نسل میں آ کے تو یہ لڑکی بن کے تو وہ اس طریقے سے ٹک ٹاک بنا کے عوام کو تو متاثر نہیں کر سکتی. کچھ لوگ ہوں گے جو ان سے متاثر ہیں، جو ان کی بات کے اوپر لب بیک کر کے بول رہے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. محترمہ ان کو یہ نہیں پتا جس کی بات کر رہے ہیں آپ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی، جی، انہوں نے تو آپ کو بھاگنے سے مجبور کر دیا کہ آپ پنجاب میں نہ آئے، اور پنجاب میں انہوں نے نہیں، ہم اس کی وجہ سے نہ بھاگنے والے ہیں، نہ بھاگ رہے ہیں. ہم ہر کام اپنا بالکل اپنے ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں. جو ہمیں ہمارے عمران خان صاحب نے کہا ہے، ہم اس کے مطابق ہی اگلا لائحہ عمل بھی بنا رہے ہیں. اور ابھی تک جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ پاکستانی عوام ہے، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے وہ پاکستانی لوگ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کشمیر ڈے بنا دیا. کشمیر پہ تو ہندوستان والوں نے ظلم ڈھائے اور وہ ہمارے مخالف تھے. انہوں نے آنسو گیس پھینکی، انہوں نے پانی کی گولیاں پھینکی دھوئیں کے ساتھ. جو انہوں نے اس دن ہم کیا، میرے خیال سے غیر ملکی بھی دیکھ کے توبہ توبہ کر رہے تھے کہ یہ پاکستان ہے اور یہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو، کیونکہ حکمران یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں شنگھائی کانفرنس، جی اس دن تک آپ ٹھہر جائیں تاکہ جو غیر ملکی مہمان آتے ہیں ان کی عزت تکریم میں فرق نہ پڑے. لیکن آپ پھر اب بھی اس وقت بھی ڈی چوک میں لوگ آپ کے آنے آ رہے ہیں اور 4 جگہوں پہ اور آپ نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو 10 دن ٹھہر نہیں جاتے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ احسان صاحب، 10 دن کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ان لوگوں کا ہے جن کو انہوں نے تشدد کیا، جن کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، جن کو انہوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے فائرنگ کروائی. وہ تو اللہ کی ذات ہے. علی امین گنڈا پور کو جس طریقے سے انہوں نے قاتلانہ حملے کروانے کی کوشش کی، اس کو بلوچستان ہاؤس سے کے پی ہاؤس کے دروازے توڑ کے انہوں نے اس کو اندر سے پکڑا اور پکڑ کے گرفتار کیا. اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہر حد کراس کی ہے انہوں نے. پہلے جب عمران خان پر فائرنگ ہوئی تھی، جی بالکل، تو اس وقت پرچہ نہیں کٹا تھا اور اس کے بعد عمران خان نے سب کو معاف کر دیا. تو اب یہ باتیں ساری بھول جائیں آپ. یہ ہر بات یہ باتیں اب بھولنے والی نہیں ہے، اب مذاکرات والی باتیں نہیں ہیں. اب تو گندا وہ کہتے ہیں نا نوری کشتی والی بات ہو گئی ہے. اچھا، یہ اب ایک ڈنڈا ماریں گے آگے سے 10 ڈنڈے کھائیں گے.
क्यों कि इन्होंने अवाम को इस तरीके से मुस्तलक कर दिया, इस तरीके से गुस्से के साथ, वो पागल है अवाम, वो कहती है कि अब हम इनका जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे देखिए अलीमा हमारी बहन जो पीटीआई की इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो बेकसूर थी, वो सियासतदान नहीं थी, वो अपने भाई के प्यार में जेलों में जाती थी, अपने भाई का पैगाम देती थी। इन्होंने जालिमों ने उनको पकड़ के जेल में डाला, 2 दिन तक उनको 2 दिन का रिमांड लिया, उनको जो रात रखा, 2 रातें उनको खाना भी नहीं दिया। ये जो आपकी तहरीक है जी, इससे किसी किस्म का हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, हुक्मरानी उसी तरह चल रही है, वो सारे काम अपने कर रहे हैं, अपने दौरे भी कर रहे हैं, गैर मुल्की भी बुला रहे हैं, तो आप इससे हासिल क्या करें कि इमरान खान की राही चाहते हैं आप? एहसान साहब, आप ये कह रहे हैं कि इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी सोच हो सकती है, उनकी तो हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनकी तो नींदें हराम है, वो तो डर के मारे हमारे ऊपर वो तलगन लगा रहे हैं जो किसी ने भी जिंदगी में नहीं लगाई हुई। वो वजह इनकी इसी वजह से है कि ये अपने आप से बेबस हुए हुए हैं। उनको ये नहीं समझ आ रही कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए या इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा। हालांकि ये तो रिलीफ तो हुकूमत ने देना, तो वो आप किससे मांग रहे हैं? एहसान साहब, 70 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत थी, और मुझे बता दे कि कभी इस तरीके से घिलौने नहीं, 40 साल से जी, 70 साल तो पाकिस्तान बने को हो गया जी। अच्छा, बात करने का मतलब ये था कि पाकिस्तान में जब से ये हुक्मरान बने हैं तब से ये देख ले ये खेल चलते आए हैं, लेकिन इस तरीके से घिलौने और बेआबरू करने वाले और जिल्लत घरों की में खवातीन की करने वाली कभी इस तरीके से हमने नहीं देखी। ये बड़ा गुरु जी कहानी सुना रहा है जी, अब वो आपके ज़हनों में उतरी है? सही बातें कर रहे हैं वो? नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो अपनी जान बचा के निकले, इन्होंने उनको मारने की कोशिश की और वो अपनी जान बचा के निकले। वो दलेर आदमी है, ये बुज़दिल लोग हैं, ये पीछे से फैर करते हैं, वो सामने सीने में गोली खाने वाला बंदा है। जब वो कहते हैं कि मैं ब्लैक सूट और सर पे कफन पहन लेता हूँ ना, तो मैं अल्लाह की जात से के अलावा मैं किसी को डरता नहीं हूँ। देखें जी, गुजारिश ये है कि जो जमहूरी और उसूली सियासत है उसमें तो ऐसा कभी नहीं होता कि भाई चोरी छुपे या उजलत में, जल्दबाजी में कोई जिस तरह कोई चोरी करनी होती है उस तरह ये कोई तरमीमें आईनी जो है वो पास करवाई जाए। आईनी तरमीम कराने के जो है वो पार्लियामेंट में और पार्लिमानी जो उसूल और ज़वाबित हैं आइन में दिए गए उनको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी अर्ज ये है कि ना तो हुकूमत पहले यकीन दिलाए ना कि भाई हम इतने दिनों तक ये आइनी तरामीम का पंगा नहीं लेंगे। मतलब ये है कि एक पार्टी का जो जमहूरी उसूली हक है कि वो आइन ने उनको दिया है, वो उनको करने की इजाजत नहीं देते और चाहते हैं कि उसकी आड़ में वो जो है वो अपने तमाम जो मकासद हैं मज़मूम वो पूरे कर लें। ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ है उसको भी खुलकर बात करनी चाहिए और खुलकर मुतालबा करना चाहिए कि भाई ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें हमारे गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, हमें उन सब का एहतराम है और पाकिस्तान के मफादात का एहतराम है, पाकिस्तान के जो भी अवाम के मफादात हैं उनका हमें एहसास है। लेकिन पहले हमें यकीन दिलाया जाए कि भाई आईनी तरमीम जो है वो इस चक्कर में नहीं की जाएंगी। उनको भी खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर बात उनकी तरफ से भी आ नहीं रही है। हाँ जी, देखिए जनाब साहब, उन्होंने ये कहा है कि आप ये तरमीम ना करें, हम भी रुक जाते हैं, हम 25 के बाद कर लेंगे।
लेकिन हुकूमत की तरफ से शद्दोमत से यही बात आ रही है कि हम तरमीम ला रहे हैं और इसीलिए 6 लोग इकट्ठे बैठे हैं ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमती जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत ज्यादा है और उनको अपनी पोजीशन जो है अवाम की नजर में, जो अवाम उनके साथ है उनकी नजर में बिल्कुल वाज़ेह करनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। जी अलामा, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई फलस्तीन के साथ यकजहती के बारे में, क्या इस तरह पाकिस्तान के मसाइल के बारे में नहीं हो सकती? देखें, वो जो एक अच्छा काम हुआ है और वो भी मैं समझता हूँ कि उसमें जो सबसे अहम बात है वो जमात इस्लामी के अमीर ने, हाफिज नईम साहब ने वो तवज्जो दिलाई है, हुकूमत को उन्होंने आमादा किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फलस्तीन के बारे में हुई है वो तो बहुत ही एक अच्छा कदम है, मगर अफसोस ये है कि उसमें कोई अमली इक़दाम करने का ऐलान अभी तक सामने नहीं आया और ये जो है ये बहुत जरूरी था। अब ये उन्होंने मुतालबा किया है कि जी जंग को रोका जाए या ये किया जाए वो किया जाए। किन से मुतालबा किया है? उनसे मुतालबा किया है कि जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के मामले में कोई संजीदा कदम आज तक एक भी नहीं उठाया है। जहां मुसलमानों के खिलाफ कोई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आ जाए दूसरे दिन हमला कर देते हैं और ये आपके सामने सलामती कौंसिल की, आलमी अदालत की और अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी करारदादें हैं उनको इसराइल और अमेरिका पांव से नीचे रौंद रहे हैं और हमारे हुक्मरान जो है वो फिर भी उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं। वो कहा था ना कि मीर क्या सादा है कि बीमार हुए जिनके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो राम किन से मुतालबा करते, किन से बात करते, किन से बात करते? ये आपने कहा है ना कि, तो मुझे ये बताइए किन से बात करते? मेरी अर्ज सुने ना और सुन ले। आगा शोरश काश्मीरी ने कहा था तवक्को खैर की मुमकिन और इन कमीनों से, वफा मेहर की उम्मीद और इन लाइनों से, और बने हैं अमने आलम के अलम बरदार, लुचड़ रहा है लहू जिनकी आस्तीनों से। तो उनसे ये मुतालबा करते हैं अल्लाह ताला इनको खुद आलमी कुव्वत बनने की तौफीक अता फरमाए। ये आलमी बिरादरी ने आज तक मुसलमानों के हक में कोई एक कदम भी नहीं उठाया। सही। अच्छा अलामा साहब, मुझे ये बताएं, बाकी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद होते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में भी उनका होना जरूरी नहीं था? देखें जी, वो जरूरी था या नहीं था ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है फलस्तीन के बारे में, ये बहरहाल एक अच्छी बात है। इसमें भी मैं दरखास्त करूंगा ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो उनको शामिल होना चाहिए था। अगर वो शामिल नहीं हुए हैं तो उनको पूरी कौम को बताना चाहिए, किसी जिम्मेदार आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उसकी वजूहात क्या है और उनका मौक़िफ़ फलस्तीन के बारे में क्या है, ये बात अवाम के सामने आनी चाहिए। मैं यहाँ ये अर्ज करता हूँ, तरीके इंसाफ ने जो कहा है ना कि हम इस APC में शामिल इसलिए नहीं हुए कि इन्हीं दिनों में हमारे तमाम बड़े लीडरान को गिरफ्तार किया गया है और हम पर कत्ल के झूठे मुकदमे बनाए गए हैं और हमें दीवार से लगाया गया पूरे तरीके से इन्हीं दिनों में, तो इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसके बात सुने, दूसरा उन्होंने कहा कि इसके पसे पुश सिर्फ वही मामलात है जो कि जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने तय किया। ये तो मेरी अर्ज ये है, मैं जो बात कह रहा हूँ ना वो बात मेरा भाई बिल्कुल सही है। फलस्तीन के बारे में तहरीक इंसाफ को अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने लाना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा अलामा, मुझे ये बताएं, ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने अब भी ये कॉल दी हुई है मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल की, एहतिजाज की, क्या आप इसको किस निगाह से देखते हैं? अब और पंजाब हुकूमत हर तरीके से इनको दीवार के साथ लगाना चाहती है और वो गोलियां भी चला रही हैं, रबड़ की गोलियां भी चला रही है, आंसू गैस भी, और खास तौर पर इमरान खान की दोनों बहनों को जो गिरफ्तार किया गया है और उनको थानों में रखा गया है
और उनको ना खाने को दिया गया ना पीने को दिया गया, बीमार खवातीन और ये 60-70 साल की उम्र की है, ना उनको मेडिसिन दी गई है। क्या ये इंसानी हकूक़ के बारे में जिस तरह गजा में और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, ये कुछ तो पाकिस्तान में हो रहा है? यार भाई एहसान नाज साहब, ये पराचा साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, हमने इनके साथ जेलें काटी हैं। उस वक्त से हम देखते आए हैं कि हुकूमतें यही करती आई हैं। हमने लाठी चार्ज भी बर्दाश्त किए हैं और कैदो बंद की सहूलतें भी बर्दाश्त की हैं। ये जितने भी लोग इमरान खान या इमरान खान के बहने वो गिरफ्तार हैं, मैं उनको यही कहता हूँ मौलाना जफर अली खान के अल्फाज में कि किया हुकूमत ने चंद दिन के लिए जो जिंदा में बंद तुझको, तू शुक्र हक करके राह हक में पहुंच रही है गुसंद तुझको, जिस राह पे चलने वाले हयात जावेद पा चुके हैं, वाह वाह उस राह के लिए तेरे खुदा ने किया है पसंद तुझको। ये कैदो बंद तो कोई शायरी नहीं है, ये इस तरह के कामों में फिर इस तरह तो होता ही है। हमने सारी उम्र गुजारी है और हर चीज बर्दाश्त की है, और जो तहरीक इंसाफ वाले हैं इनके साथ हमें हमदर्दी है, क्योंकि ये सारे मुल्क की अवाम आज इनके साथ है। तो इनको वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहिए कि हम पाकिस्तान के मफादात और अवाम के मफादात और मुल्क मिल्लत के जो कानून कवानीन है उनको कवानीन की कोई वायलेशन नहीं करेंगे, और हम पुरअमन मुजाहरे करेंगे। ये पुरअमन मुजाहरे करें। हाँ, अगर गिरफ्तारियां देनी है तो पुरअमन गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दें। अगर ये गिरफ्तारियां देनी शुरू कर देंगे तो कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो पुरअमन अपनी जद्दोजहद जारी रखें, खूबसूरती पैदा करें, उसमें जमाल पैदा करें, और मनफी प्रोपेगेंडा जो इनके खिलाफ हो रहा है उसको जायल करें। राम साहब, मुझे ये बताया कि आपने 1970 से लेकर अब तक जितने भी एपिसोड हुए उनमें हुकूमतों के जुल्म भी देखे हैं, तशद्दुद भी देखा है, जेलें भी देखी हैं। जो कुछ इस वक्त ये हुकूमत कर रही है, इसकी मिसाल किसी हुकूमत के आपको मिलती है? देखिए कि ये दिन ब दिन हमारे लोग जो हैं बेइंसाफी में, बेअदली में और जुल्म जबर में तरक्की कर रहे हैं जी। और जो ये कर रहे हैं ना, अल्लाह ना करे इनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इंतकामी सियासत मुल्क के मफाद में नहीं है। मैं हुक्मरानों को, वक्त के हुक्मरानों को ये वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि ये जो इंतकामी सियासत आप कर रहे हैं ये मुल्क व मिल्लत के मफाद में नहीं है, ये यहूदो हनूद के मफाद में है, ये इसराइल के मफाद में है। और ये आपके जो मुखालिफिन है हुकूमत वाले जो है, ये मैं अपोजिशन जमातों को कहता हूँ कि आप जो भी गैर कानूनी काम करते हैं या कानून की वायलेशन करते हैं वो इन जालिम हुक्मरानों के हक में जाता है। अलामा साहब, मुझे आप ये बताएं, अब ये जो काजी फैज को एक्सटेंशन दी जा रही है और फिर ये अपने जो इलेक्शन कमीशन के हैं उनको दी जाएगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दी जाए, इस पर तलबा का ये एहतजाज है कि जब इसी तरह बुजुर्गों को एक्सटेंशन दी जाएगी तो हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ, मेरा मौक़िफ़ इस सिलसिले में बिल्कुल वही है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ है जी। हम लोग किसी भी एक्सटेंशन से हक में नहीं है, बिल्कुल ये गलत चीज है, बेअदली है, बेइंसाफी है, दूसरों का और नौजवानों का, नई नस्ल का, पढ़े लिखे लोगों का हक मारने के मुतरादिफ है। हम समझते हैं जिसके रिटायरमेंट का वक्त आ गया उसको रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं, अब इस बारे में हुकूमत ने जो कानून साजी की है और उसमें तमाम तलबा को रोक दिया है, कोई मुजाहरा नहीं कर सकता, कोई किसी किस्म की बात, हमने ECL पे उनका नाम डाल। देखें, जो चीज भी इंसानी हकूक की आजादी के खिलाफ है वो कानून चाहे बन भी जाए उसको पाकिस्तान के अवाम नहीं मानेंगे और उसको किसी तरह ये मुल्क में परमानेंटली नाफज नहीं कर सकते हैं, ना हम उसको कबूल करेंगे। अब जिस तरह के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आके अपने टीवी चैनलों पर ये कहते हैं कि मैं आनी हाथ से निपटूंगा, और उन्होंने निपटा भी है, और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर को वो इस मामले में राह से हटाना चाहते हैं, और जो बात सारी उन्होंने गंडापुर साहब ने अपनी असेंबली में जाके की है और उस पर
अवामुन्नास को मैंने रोते हुए देखा है कि इतना जुल्म, इतना जबर, इतना तशद्दुद पहले कभी नहीं हुआ, जो कि मोहसिन नकवी के दौर में, और ये जो रिजवी वहाँ पे आईजी लगाया गया है, और ये जो आईजी पंजाब है, ये जो मिलकर कर रहे हैं। भाई बात ये है कि ये जो कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो बढ़ जाता है। ये इसका मिटना मुकद्दर है, जो मर्जी कर ले मोहसिन नकवी साहब या दूसरे हुक्मरान जो है, जो मर्जी कर ले, जुल्म जो है वो मिटेगा और यहाँ पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का दौर दौरा होगा और पाकिस्तान में अल्लाह के कुरान और पैगंबर की सुन्नत की शरीयत जो है वो गालिब आकर रहेगी। और हम इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं शुरू दिन से, और इंशाअल्लाह जो मर्जी हालात हो जाए हम उसके लिए जिद्दोजहद। अच्छा, मैं आप पीटीआई की रहनुमा ज़ेबा नाज़ साहिबा से ये पूछता हूँ, क्या ये जो आपने आज भी मुख्तलिफ जगहों पर जलसे, जुलूस, धरने और एहतिजाज रखा है, पहले आपका कामयाब नहीं हुआ, तो अब फिर ये बार बार अपने गले में फंदा क्यों डालते हैं और आवाम को परेशान क्यों करते हैं? मैं पहले तो अलामा साहब की बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी कि हमने अभी तक जो वहाँ पे जंग हो रही है उसके ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं की। हम आवाज़ उठाते हैं, हम आवाज़ उठा रहे, हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। और हमारे जो लीडर है वो कौन आके बोले बाहर, जो रहे ही नहीं। हम कारकुन हैं, हम MP MNA जितने भी हैं सब पकड़े गए हैं। कोई लाहौर से पकड़ा गया, कोई पिंडी से पकड़ा गया, कोई गुजरांवाले से पकड़ा गया, कोई रियाला जेल के बाहर पहुंचा तब पकड़ा गया। हमारे ऊपर तो वो दहशतगर्दी चल रही है जिसका हम आपको बता भी नहीं सकते, कि हम वो कहते हैं इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते। हमारा तो आलम ये बन चुका है कि हम बात करें तो गेट के बाहर पुलिस का डले खड़े होते हैं। ये कभी जिंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं है। जिस तरीके की दहशतगर्दी इस हुकूमत ने फैला दिया पंजाब, वो तो रामा साहब ने यही बात की है ना, तो आप मुझे सही कह रहे हैं। आप मुझे ये एहतिजाज आज भी आपने रखा हुआ है। जी बिल्कुल रखा हुआ है। डी चौक में इस वक्त भी लोग आपके जमा है, तो इससे क्या आप चाहते हैं कि वो गोलियां मारे आपको? आप नहीं, गोलियां वो अगर मारेंगे तो हमारे सीने हाजिर है। हम अपनी पार्टी के लिए, अपने कायद के लिए गोलियां खाने के लिए भी तैयार है, उफ भी नहीं करेंगे। लेकिन ये जितना जुल्म कर रहे हैं, जितना ये चादर और चार दीवारी को चाक कर रहे हैं, जिस तरीके के साथ लोगों के घरों में औरतें सोई हुई हुई हैं घरों में, और दरवाजे तोड़कर औरतों को खींच के निकाल के ये जेलों में लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से पकड़ के, ये हमारी सरताज गुल साहिबा बीमार थी घर में, अपने घर में, बिल्कुल उसने इस एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया, उसकी तबीयत बड़ी खराब थी। पुलिस के डाले रात के 3 बजे उसके घर घुसे और उसको कमरे से बगैर दुपट्टे से नोच के, घसीट के, मर्दों ने, औरतों ने नहीं, मर्दों ने उसको खींच के ला के गाड़ी में बंद किया। घर में कुरलाम था कि भाई उसको चादर लेने दे, उसको जूता पहनने दे, को आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन किसी मर्द ने कोई आवाज नहीं सुनी। इस हद तक बेहुदगी, इस हद तक ये इस्लामी जमात जमहूरियत पाकिस्तान की औरत थी, बेटी थी, माँ है वो, बीवी है वो। यहाँ पे सिर्फ मरियम नवाज औरत है जिसको अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं आ रहा हूं, और इनकी रातें हराम थी कि जब तक अली अमीन गंडापुर को गोली ना मारी जाए तब तक मरियम नवाज साहब को ठंड नहीं पड़ेगी। ये जो माओ बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, ये जो माओ बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है, इसकी आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि ये पीटीआई की औरतें हैं। पीटीआई की औरतें नहीं है। मरियम नवाज सिर्फ औरत है, उसकी इज्जत है, उसकी इंसल्ट होती है, उसको कोई तू करके बुला ले, उसको कोई हंस के टीवी पे बात कर ले तो उसको लड़ जाती है, क्योंकि वो अर्थक्वेक है, वो औरत है ही नहीं। उसके अंदर सीने नाम की, दिल नाम की चीज ही नहीं है। ना वो मर्द को रख सकी, ना वो किसी अवाम को रख सकी, ना वो किसी औलाद को रख सकी। बेटे की शादी की तो तीसरे दिन बहू तलाक लेके चली गई। ये इस तरह के लोग हैं, बेहिस किस्म के। इनके अंदर ना माँ, ना बेटा, बेटी, ना किसी किस्म के रिश्ते की पहचान नहीं है। इसलिए वो अपनी हुकूमत में वही जुल्म अवाम के ऊपर भी धारना चाह रही है। ऐसा नहीं होगा। मेरी गुजारिश है
क्या इस तरीके से जो एहतजाज आप कर रहे हैं जी और जिस जुल्म और तशद्दुद की आप ये रुक जाएगा, ये कम हो जाएगा? नहीं रुके ना रुके, लेकिन हम इनको भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। अगर ये हमारे साथ इतना जुल्म करेंगे तो अवाम चुप नहीं बैठेगी, अवाम भी भरपूर इनका हर जुल्म का जवाब देगी और डट के खड़ी होगी अच्छा, आप सामने। देखो ना, जिस तरह के मरीम नवाज रोजाना को ना कोई इफ्ताह करती है गरीबों वो तो ढोंग है उसका, वो तो ढोंग है नाज़ान साहब। क्वेश्चन सुने, जी वो कर रही है तो अली अमीन गंडापुर कुछ नहीं वहां पे कर रहे, तो ये सिर्फ लड़ाई इसी है कि इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान को छोड़ो। तो मुझे इस तरह अवाम के हकूक तो आप सलब कर रहे हैं आप खान भी। साहब, हमारे अली अमीन गंडापुर जो काम कर रहे हैं ना, ये तो उसके पास को भी नहीं है। वहां पे जितना लोगों को रिलीफ मिला हुआ है, ये तो जलते हुए हमारा सोशल मीडिया बंद है, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इन्होंने लॉक लगाए हुए हैं, सोशल मीडिया पूरा इन्होंने हैक किया हुआ है, कुछ पैसे दे के और कुछ इन्होंने हरासा करके। तो हम तो हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये यूट्यूब पर जो हैं, वो हर बात अवाम तक पहुंचा रहे हैं। ये कितना बंद करेंगे? इनके पास वो नॉलेज है ही नहीं जो अवाम के पास है। अवाम हर बात दूसरी अवाम तक पहुंचा रही है और यही विजन हमारे इमरान खान साहब का है। इमरान साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह के अब मरीम नवाज साहब पंजाब में तरक्की कर रहे हैं, गुजारिश ये है, इस मेरी बहन ने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि इनकी सफ़े अव्वल की क़यादत को फलस्तीन के बारे में अपना वाज़े मौक़िफ़ जो है, जी जी, मैं आपका मैसेज जरूर पहुंचाती हूँ उनको। हाँ, वो इनको अवाम के सामने पूरी तरह लाना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक ठीक। अच्छा आलम साहब, मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज यहाँ तरक्की कर रही है, डेली कार्ड को उनको तकसीम करती है, मुख्तलिफ इफ्तिताह करती है, जबकि गंडापुर साहब सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के बारे में बात करते हैं। क्या ये ऐसे होना चाहिए या वहाँ भी कुछ होना चाहिए? बात सुने, अगर वाकई इसी तरह की बात है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर तो मरीम नवाज को और मौजूदा हुकूमत को बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर गंडापुर साहब कुछ नहीं कर रहे वहाँ, तो आइंदा इलेक्शन में सारे वोट इनको मिल जाएंगे। इनको तो खुश होना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो उसको एलिमिनेट करना चाहती है, मारना चाहती हैं। बात यह है कि अगर गंडापुर नहीं कर रहे तो केपीके के अवाम जो है वो उनसे क्यों खुश है? इस वजह से उनके साथ केपीके की अवाम इतनी खुश है गंडापुर से कि वो सोच है, और ये जेलस हो के उनके ऊपर लायामल अपना बनाती है, टिकटॉक बना के फेंक रही है कि मैं काम कर रही हूँ। अली अमीन गंडापुर तो सिर्फ जलसे कर रहे हैं। मैंने आपसे नहीं पूछा कुछ। अच्छा राम साहब, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ऐसा फार्मूला आप बता सकते हैं जिस पे लोग अमल करें, सारी सियासी जमातें अमल करें, तो इससे मुल्क की तरक्की भी हो और पाकिस्तान के अवाम के जो हकूक है वो भी सलब न किए जाए? देखें, पाकिस्तान में जो ये पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा, अल मुल्क यबका माल कुफरी भला यबका माल जुल्म। मुल्क जो है वो कुफर से बाकी रह सकते हैं, जुल्म और ज्यादती से बाकी नहीं रह सकते। और एक हदीस मुबारक के ये अल्फाज हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14.5 पहले ये इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यंसुरु दौलतल आदिला वलौ कान काफिरा, अल्लाह ताला अदल व इंसाफ करने वाली मुमलिकत की मदद करता है चाहे वहाँ काफिरों की हुकूमत क्यों ना हो। वह इन्नल्लाह ला यंसुरु दौलतल जालिमा वलौ कान मुस्लिमा, और अल्लाह ताला जुल्म व जबर करने वाली, बेअदली और बेइंसाफ करने वाली हुकूमत की मदद नहीं करता वहाँ चाहे मुसलमानों की हुकूमत क्यों ना हो। अच्छा राम साहब, एक सवाल है यार, एक क्वेश्चन। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में अदल व इंसाफ होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, अदल व इंसाफ नहीं होगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। राम साहब, ये आखिरी एक मिनट है, एक बात मैं 2 और 2 4 की तरह कह रहा हूँ कि ये जो थोड़ा बहुत अदल व इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की आजादी की वजह से पाकिस्तान के अवाम को हासिल है, या आखिरी उम्मीद है लोगों की
ये अदलिया साहब जो है वो भी हमारे हुक्मरान खत्म करना चाहते हैं, तो मुल्क फिर कैसे तरक्की करेगा और किस तरह आवाम का। अच्छा अलामा साहब, टाइम हो रहा है ख़त्म, तो मैं एक सवाल आखिरी करके ये आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर जाकिर नायक आए हुए हैं पाकिस्तान में, उनको एक हिंदू ने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफज किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं आप मिले इस तमाम बड़े लोगों से, तो उनको ये कहें। तो मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफज हो जाता है, तो क्या इसमें पूरी कौम एक वॉक करके इसमें शामिल नहीं हो सकती? देखें जी, बात ये है तो बहुत पहले हो सकता था, 75 साल इन्होंने जाया कर दिए हमारे, और इस वजह से सबसे ज्यादा मुल्क और कौम को नुकसान हो रहा है, और इसी वजह से हम अदल व इंसाफ से महरूम है। हर तरह की जो है हमारी माशी मतलब सियासी तबाही बर्बादी होती है, इसी वजह से हो रही है। और डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो है उनका तो काम ही यही है, और वो दिन रात बेचारे यही काम कर रहे हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कभी एक मुल्क से हिजरत, कभी दूसरे मुल्क से हिजरत। अच्छा अलामा ज़ुबैर मज़हर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा हमें वक्त दिया। मैं डॉक्टर फरीद परवेज़ साहब का भी मशकूर हूँ, उन्होंने बड़ा वक्त दिया, और मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया। तो मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने देखने वाले से ये मुल्तमस हूँ कि मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात उसका फैसला करना आपने।